In the last class, we discussed about the basics of magnetic effects, right? So today we are going to discuss solenoids, electromagnets. What is solenoid? Helically wound insulated wire. It's generally wound, helically wound in the sense this way. Okay. This is wound on a non-conducting cylinder. Okay. So it can be a copper wire, insulated copper wire, right? So let's say the current I flows through this wire. This is the current I flowing through this wire. So this will be the direction of the current, right? This will go here, again, right? So in that case, this is what we call solenoid. The helically wound insulated copper wire, generally wounded on non-conducting cylinders. Okay. So the side, how do we get to know which is north face and south face? Which will act like a north pole and south pole. See, in the previous class we saw if current is flowing in an anti-clockwise direction, if this is the flow of current, that face will be north pole, right? And if the direction of the current is clockwise, then that face will be south pole, right? We discussed this in the previous class. So this face, you can see this is clockwise, right? If you see this is clockwise, so this will be south pole. And this side, you can see it's anti-clockwise direction, so this becomes north. Right? So we know at the end of the north, we have magnetic field lines leaving. And in the south, we see magnetic field lines emerging. Right? So what you will see in solenoids, outside it runs from north to south. It runs from north to south. Inside it runs from south to north. Very similar to bar magnet. The magnetic field lines represented in solenoid is very similar to bar magnet. Okay. Now, inside this non-conductor, right, cylinder on which we are wounding this copper coil, copper wire, right, if we place a soft iron core, basically solenoid is used to make temporary magnets and permanent magnets. Now, how temporary and how permanent, I'll tell you. If inside this, see, there is a, let me take a non-conducting cylinder, alright. Now, I have this copper wire, okay, through which current I will be flowing. This is solenoid. So inside this, if I place a soft iron core, like let me say a soft iron is placed inside this conductor. Now this will act like a temporary magnet. See, why soft iron? Because it produces very strong magnetic field when the current is passed through the coil. So you will get, powerful electromagnets. Okay. So this is called electromagnet. You have placed a soft iron at the core, inside the non-conductor. So this acts like a temporary magnet. And why not any other material like steel, cobalt or tungsten or carbon steel or alloys like Alnico? Why not those materials? Because it is very difficult to magnetize them, and even if it gets magnetized, चलो मान लेते हैं वो magnetize हो गया, due to strong magnetic field वो magnetize हो गया. If you remove the current, if you switch it off, it will still contain magnetism. वो demagnetize नहीं होता है, यानी वो permanent magnet की तरह act करता है. ठीक है? तो आपको solenoid से क्या मिल गया? Electromagnet में मिल गया, permanent magnet में. Electromagnet is a temporary magnet. आप जैसे इसका कनेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है, सर्किट को ओपन कर देंगे, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है. जैसे आप सर्किट को क्लोज कर देते हैं, वो मैग्नेटाइज होके टेम्पररी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहेंगे? अगर सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस किया तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये कहां यूज होता है? टू लिफ्ट हैवी थिंग्स. हैवी थिंग्स को लिफ्ट करने के काम आता है. क्रेन्स, ये जो क्या कहते हैं, स्क्रैप यार्ड्स बोलते हैं उनको. तो
तो वहां पे जो क्रेन्स जो चीजों को हैवी चीजों को लिफ्ट करता है, तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कनेक्ट होते हैं. हॉस्पिटल्स में टू रिमूव स्प्लिंटर्स फ्रॉम आयरन, स्प्लिंटर्स यानी पीसेस ऑफ आयरन वगैरह के पीसेस जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कभी कभी आंखों में फंस जाता है. टू रिमूव दैट डॉक्टर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इवन इन मेनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक if I want to say microphones, TV, radio, and telephones, electric bell, even in tapes, audio, video tapes, cassette tapes, you see electromagnet being utilized. ठीक है? So I can differentiate permanent magnet and electromagnet. Electromagnet is temporary magnet, so I can differentiate temporary magnets and permanent magnets. ठीक है? Based on what? Based on magnetism, ठीक है, based on polarity, and also based on strength. इन तीनों के बेस में I can divide electromagnet यानी temporary magnet and permanent magnet. ठीक है, temporary magnet और permanent magnet को मैं इन तीनों चीजों के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ. पहला मैग्नेटिज्म. सिंस दिस इज टेम्पररी, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट, मैग्नेटिज्म क्या होगा? टेम्पररी होगा. ये तब तक मैग्नेटिज्म दिखाएगा जब तक करंट उसमें फ्लो होगा. ठीक है. परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिज्म क्या होगा? परमानेंट ही होगा, इन स्पाइट ऑफ करंट फ्लोइंग और नॉट. ठीक है. पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी मैं नॉर्थ साउथ पोल के बारे में बात कर रहा हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं. और रिवर्स कैसे करेंगे? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. राइट. रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर आप टर्मिनल्स जो बैटरी आप यूज करो उसके टर्मिनल्स को उल्टा प्लेस कर दो, डायरेक्शन ऑफ द करंट विल फ्लो अदर वे अराउंड, उल्टा हो जाएगा फ्लो, है ना. तो पोलैरिटी भी उल्टा हो जाएगा. बराबर. परमानेंट मैग्नेट में नो चेंज, यू कैन नॉट चेंज द पोलैरिटी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट का? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट वैल्यू इन द सर्किट. ठीक है. लेकिन परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. ये बेसिक डिफरेंस हो गया. मैं वापस बताती हूं. अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट, और मुझे बीच में डिफरेंशिएट करना है बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म, पोलैरिटी और स्ट्रेंथ, तो कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो उनकी टेम्पररी मैग्नेटिज्म होती है, तब तक रहती है जब तक उसमें करंट फ्लो होता है. ठीक है. एक बार आप स्विच ऑफ कर देंगे तो उसका मैग्नेटिज्म निकल जाएगा. परमानेंट मैग्नेट का उससे कुछ लेना देना नहीं. पोलैरिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी हम रिवर्स कर सकते हैं. ये रिवर्स कैसे होगा? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अब टर्मिनल्स को उल्टा लगा लो. ठीक है. परमानेंट मैग्नेट में पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, यानी नॉर्थ साउथ पोल्स जो है वो चेंज नहीं होंगे. स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हो. कैसे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. परमानेंट जो है, परमानेंट जैसे बार मैग्नेट की बात करें तो वहां पे जो स्ट्रेंथ है उसको हम बार बार वेरी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अभी हमारा नेक्स्ट ये देखते हैं फोर्स. फोर्स के बारे में देखते हैं. फोर्स के बारे में हम क्या देखेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स इन अ करंट carrying conductor placed in magnetic field. इसके बारे में डिस्कस करना है. जो फोर्स डेवलप हो रहा है, ये जो फोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सी, हमने ऑलरेडी देखा व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लेते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो आई फ्लो हो रहा है. व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ब्रॉट क्लोज टू एक कंपास नीडल, ये मान लेते हैं कंपास नीडल है. करंट कैरिंग कंडक्टर कंपास नीडल के पास लेके, व्हाट डिड वी सी? दिस नीडल शोड डिफ्लेक्शन. क्यों डिफ्लेक्शन?
क्योंकि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये जो फील्ड है इस नीडल पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से नीडल मोशन दिखाता है। करेक्ट। अब इसी चीज को अदर वे देखो, मैग्नेटिक फील्ड exert करता है force on a current carrying conductor and sets the conductor in motion. मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स जनरेट करता है या एक्सर्ट करता है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सेट्स द कंडक्टर इन मोशन, और कंडक्टर को मोशन में सेट करता है। फोर्स इन अ करंट कैरिंग इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट्स अ फोर्स, यानी इस कंडक्टर को वो मोशन में सेट करता है। ये कैसे हो, उसके लिए वी हैव दिस साइंटिस्ट कॉल्ड मैरी एम्पियर, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम वायर लिया, ठीक है, उसको सस्पेंड किया, उसको हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में प्लेस किया। इसका कुछ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, सो सी दिस इज, लेट्स से दिस इज अ स्टैंड, ओके, दिस इज, लेट अस अज्यूम दिस इज अ स्टैंड एंड दैट इज दिस रॉड, ठीक है, रॉड पे स्प्रिंग सस्पेंड किया है, और इसके बीच में एक एल्यूमिनियम वायर प्लेस किया। ये एल्यूमिनियम वायर है, राइट, और ये एल्यूमिनियम वायर को हमने कनेक्ट किया बैटरी से और की से, ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप किया था उन्होंने। सो व्हाट हैपेंड, एज सून एज द सर्किट वाज क्लोज, दिस इज एन एल्यूमिनियम वायर, उसको कैसे कनेक्ट किया, एक स्प्रिंग के साथ उसको सस्पेंड किया। किसके बीच में होगा ये एल्यूमिनियम वायर, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में। सी अगर ये एक हॉर्सशू मैग्नेट मान लेते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच से मान लेते हैं एक, सी very bad with this drawing. Okay, let me just redraw this again. एक हॉर्सशू मैग्नेट बना लेती हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरह। इसको मान लो कोई हॉर्सशू मैग्नेट है और ये जो वायर है एल्यूमिनियम वायर, इसके थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, ये जो पोल्स है उसके बीच में से ये एल्यूमिनियम वायर पास हो रहा है। तो अब जब करंट पास होता है इस सर्किट में, ठीक है, आपने सर्किट क्लोज किया, करंट पास होगा एल्यूमिनियम वायर से, तो ये क्या हो जाता है, ये वायर नीचे की तरफ खिंच जाता है, पुल हो जाता है, यानी ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाता है। जैसे आप सर्किट को ओपन करेंगे ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन चला जाता है। अभी आप ये टर्मिनल्स को रिवर्स कर दो, यानी डायरेक्शन जो है करंट का उसमें उल्टा हो जाएगा। तो जब उल्टा हो जाता है ये एल्यूमिनियम वायर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है, यानी ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाता है। तो आपने देखा ये जो दिस इज द कंडक्टर, ये है कंडक्टर, उसको हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में प्लेस किया। सो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये वायर नीचे पुल हुआ, फिर वो ऊपर पुल हो रहा है, मतलब अ फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये यही प्रूव हुआ है, फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट अगेन, एक एल्यूमिनियम वायर लिया, ठीक है, उसको हॉर्सशू मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा, मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, मतलब दैट वाज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, और ये जो वायर है उसको कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ और की के साथ। जैसे आप सर्किट क्लोज करते हो, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो ये एल्यूमिनियम वायर क्या किया, इसको पुल किया नीचे की तरफ, यानी ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो गया।
जैसे आप सर्किट को ओपन करते हो इट इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फिर आप एक और बार चेक कर सकते हो, इसको रिवर्स कर दो, ये प्लस माइनस है, बाद में इसको माइनस प्लस कर दो और सर्किट क्लोज करो। अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ पुश होगा, यानी स्प्रिंग तब क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। बट यू कैन सी देयर इज अ मूवमेंट ऑफ अ कंडक्टर, तो वो मूवमेंट मोशन पे क्यों है वो कंडक्टर, क्योंकि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। सो दिस प्रूव्स दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सर्ट्स फोर्स। तो ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम, ये एक्सपेरिमेंट से एक बात तो पता चल गया कि जो फोर्स जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड्स ऑन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, फोर्स किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसके लिए वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।